Okay, so the topic for today is in oscillation energies associated with the particle executing SHM. ठीक है, तो कैसे एक पार्टिकल जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है उसके पास एनर्जी किन टर्म्स में होगी. The for example we take a simple pendulum. ठीक है, pendulum ली and it is oscillating about its mean position. It is oscillating about mean position. हमने उसको इनिशियल से कुछ डिस्प्लेसमेंट x दिया जिसके कारण उसकी क्या बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, है ना. तो ये रेफरेंस लेवल हो गया उसको. तो व्हेन यू गिव इट अ डिस्प्लेसमेंट you increase the height of the pendulum bob with respect to the reference level. तो हाइट बढ़ा दिया means you are giving it potential energy in turn. When you release it from there, it returns back to its original position. It gains velocity and we can say it is having more of kinetic energy over there. तो इस पॉइंट पर आने के बाद इसका क्या हो जाता है, KE equal to maximum हो जाता है. अब due to the kinetic energy and inertia at that point, it will again rotate, move to its other side, okay, and again will increase its height. If there is no loss of energy in terms of friction due to air friction, the bob will reach to its height on the other side, other extreme, and will gain potential energy. So whole of the kinetic energy associated with the bob at the mean position will be converted to potential energy, equivalent potential energy, and then the process will repeat itself. ठीक है, वो फिर से वापस नीचे जाएगा. The kinetic will be changed to, यहाँ पर क्या हो गया, P maximum, यहाँ पर पूरी तरह से P. Okay, so this is an example where you see potential energy and kinetic energy being possessed by the bodies exhibiting potential and kinetic energies possessed by the bodies exhibiting simple harmonic motion. Same happens with what, जब एक particle SHM execute करता है, it is vibrating about its mean position. So what happens, you have seen that acceleration and velocity of the particle when it is executing SHM, it is always directed towards the center. हम लोग acceleration की बात कर रहे थे, तो acceleration and the restoring force was always directed towards the center. यही था, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, always the particle is acted upon by a restoring force, और वो restoring force जो हमको करना पड़ेगा when we are giving it an initial displacement, जितना डिस्प्लेसमेंट देंगे उसको मीन पोजीशन से आगे की तरफ, तो we will have to do some work against the restoring force, and that work done against the restoring force develops the potential energy of the particle, and when it is released it will move through the motion by changing it from potential to kinetic and kinetic to potential, vice versa sequentially. So ये इनफॉर्म में एनर्जी होती है पार्टिकल के पास व्हेन इट इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. ठीक है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है. सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. We need to derive an expression for the kinetic energy possessed by the body in exhibiting SHM. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल in SHM कितना हो जाता है, x is equals to a cos of omega t plus phi. लास्ट क्लास अपना phi नॉट, लास्ट क्लास अपना पूरा इसी के ऊपर था, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन डिराइव किया था. देखो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डिफरेंशियल तो हमको वेलोसिटी देता था, ठीक है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर इन योर सिलेबस 11th क्लास. तो v is equals to क्या हो जाएगा, dy dt of displacement that is x is equals to dy dt of a cos of omega t plus phi naught. a cos of omega t plus phi naught. अब डिफरेंशिएट करो इसको, चलो हाउ क्या बोलते हैं उसको, चेन रूल के हिसाब से. एक पहले ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा और दूसरा, सो इट विल गिव मी व्हाट, a का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा होता है, cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा. ओके, इज इक्वल टू माइनस sin ऑफ ओमेगा t प्लस phi नॉट
multiplied by a omega t का अलग से differentiation that will give me what omega. So the equation becomes minus omega a sin of omega t plus phi naught. ये होगा, ये वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है. अब यहाँ पर हमको क्या करना है ना, काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व करना है. ठीक है. Since kinetic energy has the equation Ke is equals to half mv square. ये क्या है हमारे पास v है, तो v स्क्वायर पहले देख लेते हैं. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, बचेगा कितना ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट. अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है. तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट. ठीक है. अब इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट. ठीक है. अब ये यहाँ पर देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट क्या होगा, फिर से x आ गया, x है कि नहीं. तो दिस इसमें से देखो क्या कॉमन आ जा रहा है, यू कैन टेक आउट कॉमन फ्रॉम ओवर हियर एज a स्क्वायर. a स्क्वायर से भी कॉमन, ओमेगा को मल्टीप्लाई मत करना वहां पर. ठीक है. बेसिकली ये किए हैं. So we are taking out the value for v की वैल्यू यहाँ पर डाल करके भी एक इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग. ये एक इक्वेशन बन जाएगा और एक और बनेगा cos के टर्म्स में. ओमेगा स्क्वायर राइट इट डाउन एज इट इज. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर cos ऑफ स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट. ठीक है. नेक्स्टली इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट क्या है, x है. तो यहाँ स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा. तो कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर. जब हम लोग यहाँ पर देखो we multiplied what over here ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई करो. ठीक है. तो ये ना कर करके a स्क्वायर बस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा स्क्वायर बाहर रखो. सो व्हाट हैपेंस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट. अब a cos ओमेगा t को हम लोग क्या बोलते हैं, x. तो a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा. उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इक्वेशन वेलोसिटी के लिए कितनी आ गई, v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो ये दोनों इक्वेशन के टर्म्स में दो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनेगा. क्या बनेगा, Ke इक्वल्स टू पहला फार्मूला हाफ m इन प्लेस ऑफ v स्क्वायर यू पुट डाउन दिस इक्वेशन हो जाएगा. तो इक्वेशन कितना जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट. एक ये इक्वेशन आ रहा है. ठीक है. याद रखिए. और दूसरा इक्वेशन क्या लेंगे, ये वाला वैल्यू पुट अप करके. ठीक है. ये किसकी वैल्यू थी, v स्क्वायर की. तो Ke इक्वल्स टू कितना जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस x. ये दूसरा इक्वेशन. ठीक है. ये दोनों इक्वेशन याद रखना. अब इसमें से देखो ये जो है m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है मास ऑफ द पार्टिकल एंड ओमेगा इज व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अगर ये कांस्टेंट है तो उसको एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके कई लोग k बोल देते हैं. k इक्वल्स टू हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. क्योंकि यही वेरिएबल पार्ट है. दिस इज व्हाट x पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट x and what is a over here, amplitude maximum displacement what you are giving it from the mean position. ठीक है. तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन. नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी किस कारण से था, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन कहां से शुरू होगा, रिस्टोरिंग फोर्स. Restoring force on the particle F is
इक्वल्स टू माइनस के ऑफ एक्स, एक रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होता था, ठीक है। नाउ द वर्क वी हैव टू डू द ऑन द पार्टिकल टू गिव इट a displacement x, the small amount of let small work done on particle to provide it a displacement of dx, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ अपना dw करना पड़ेगा, dx is equals to f dot dw is equals to f dot dx हो जाएगा, dw is equals to ये force into displacement, f की जगह पर माइनस के x dx हो जाएगा। अब मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है, इनिशियल पोजीशन 0 से लेकर के फाइनल पोजीशन x तक के लिए, तो व्हाट आई डू, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क डन टू गिव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ x कितना लेना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, इंटीग्रल dw 0 से w दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 इनिशियल से फाइनल पोजीशन x, अच्छा, और ये जो है माइनस के x dx हो जाएगा, ये कांस्टेंट है माइनस के बाहर, इंटीग्रल x 0 से x dx, और इसका भी इंटीग्रेशन एक साथ लगाएंगे 0 से w, ओके। so this is equal to how much, माइनस के x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 0 से x तक, और इसका इंटीग्रेशन w 0 से w तक, अब लिमिट्स लगाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू w माइनस 0 w माइनस के x स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट x और लोअर लिमिट 0, ठीक है। W the work done, total work done to move it by a distance x is given by half kx plus square, और ये कैसा है, नेगेटिव में ही आ रहा है, नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, it the work done is against the restoring force, the work is done against the restoring force, ठीक है। तो अब इसमें देखो k की वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर लिए थे काइनेटिक में, कितना लिए थे, k को किसके लिए सब्स्टिट्यूट किए थे, m ओमेगा स्क्वायर के लिए सब्स्टिट्यूट किए थे, वो वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम देखना चाहेंगे तो U इज इक्वल टू U पोटेंशियल एनर्जी, जितना वर्क करते हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो U इज इक्वल टू पहला फार्मूला हाफ kx का स्क्वायर, एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा, रिस्टोरिंग इसलिए माइनस, बट एनर्जी के टर्म्स में मैग्नीट्यूड अगर देखना दैट इज इक्वल टू हाफ kx का स्क्वायर, ठीक है। k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नया फार्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये भी इक्वेशन बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू क्या थी, a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, तो ये तो फार्मूला तो बन गया, x की वैल्यू डालेंगे तो u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी हो जाती है, a, तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई, ये इक्वेशन एक और बन जाएगा फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिबिटिंग एज सच। काइनेटिक एनर्जी के के लिए फार्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी u के लिए फार्मूला आ गया, टोटल एनर्जी निकालना है, तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड with the particle executing SHM, total energy of the particle in SHM, तो total energy equals to क्या आएगा, Ke plus U की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, U कितना आ जाता है, ये वाला यूज करो, हाफ kx स्क्वायर प्लस, वहां पर कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, हाफ k मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसे करके ये इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर लें, दोनों को ऐड करो तो बचेगा क्या, देखो हाफ के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, हाफ के a स्क्वायर बचेगा, टोटल एनर्जी a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, व्हाट डू यू मीन बाय a, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओवर देयर, है ना,
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। और k की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यहां से आगे पहला फॉर्मूला k a स्क्वायर क्यों हो जाएगा, सेकंड फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर सेकंड, और वहां पर ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, ये होता है। ये पुटअप कर दो, 2 पाई न्यू पुटअप करेंगे तो दिस बिकम्स हाफ m ओमेगा का स्क्वायर करें तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर a स्क्वायर, ये भी इक्वेशन में आता है। ठीक है, ये 4 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर a स्क्वायर। So depends which formula, what is the condition given in the question, you need to calculate the total energy of the particle executing SHM। वो डिपेंड करता है कि क्या क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हाउ डज द वैल्यू ऑफ एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो सिस्टम की तो कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, हम लोग पढ़े। ठीक है, सो हाउ डज द ग्राफ वेरी फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। देख लो, अगर ये मीन पोजीशन है, ठीक है, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन -x आएगा, एक एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन पर हो जाएगी 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पर हो जाएगी 0 और मीन पोजीशन पर हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है हमने प्लॉट किया है, दिस ग्राफ इज फॉर व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम। ठीक है, बट एक टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है इक्वेशन का, है ना, ये किसका है, टोटल एनर्जी का। ठीक है, नाउ इफ आई प्लॉट द वैल्यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां पर से यू विल प्लॉट इट लाइक दिस। देखो, this graph over here shows what, potential energy U, where at extreme position it is maximum and at mean position it is 0. ठीक है, so the variation for K and P graphically can be represented by this graph, where the total energy of the system in terms of summation of sum of kinetic and potential is equals to a constant। ठीक है, मतलब ये y axis में आपका एनर्जी, ठीक है, y axis represents the energy and x axis represents the displacement।